میرے ہاتھوں پر سوئیاں ہی سوئیاں لگی ہوئی ہیں۔ میں ایک بڑے شہر کے جنرل ہسپتال کے وارڈ نمبر 2 میں لیٹی ہوئی ہوں۔ میرے ارد گرد بہت سے مریض اپنے اپنے بستروں پر پڑے ہیں، جن میں سے کچھ موت کی آغوش میں جانے کے قریب ہیں، جنہیں تڑپتا دیکھ کر میری روح کانپ رہی ہے۔ کچھ لوگ میرے ارد گرد جمع ہیں جو میرے بولنے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر میرے منہ سے ایک لفظ بھی نکل نہیں پا رہا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ زہر کا پیالہ منہ سے لگا کر ابدی نیند سو جاؤں، مگر مجھ جیسوں کو موت بھی آسانی سے نہ ملتی۔ میرے پاس کھڑے لوگوں کا مجمع میری طرف بڑھ رہا ہے، میرے گریبان کو پکڑ کر سوال کر رہا ہے، اور میں پھٹی نگاہیں لیے انہیں گھور رہی ہوں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاقو ہے جو اس نے میرے گلے پر رکھ دیا، اور میری ماں مجھے سامنے سے آتی دکھائی دے رہی ہے۔ میں سہم گئی ہوں۔ اس شخص نے اماں کی طرف دیکھا اور اماں کے اشارے پر میرے گلے پر تیز دھار چاقو مار کر میری شہرک کاٹ دی۔ میری ماں رو رہی ہے، میں آخری سانسیں لیتے ہوئے دیکھ رہی ہوں وہ تڑپ رہی ہے، لیکن میرے دل کو سکون آ گیا ہے۔ اب میرا درد ختم ہو گیا ہے، کیونکہ یہی میری سزا تھی۔ میں مسکرا اٹھی اور اماں کی طرف دیکھنے لگی تو وہ اپنا سینہ پیٹ کر میرے پاس آن بیٹھی، میرے ہاتھوں کو چومنے لگی، میرے ماتھے کو سہلانے لگی اور میرے گلے پر رواں خون اپنی چادر سے صاف کرنے لگی، مگر وہ بہتا چلا جا رہا ہے۔ نرس نے فوری ڈاکٹر کو بلایا اور وارڈ میں بھگدڑ مچ گئی۔ میرے پاس لیٹے دوسرے مریض رونے لگے، مگر میں نہیں رو رہی۔ ایسی زندگی سے بہتر مر جانا ہوتا ہے، اور میں خوش ہوں کہ دوسرا میری موت کا فیصلہ میری ماں نے کیا۔ خون بہ رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آج سے 6 ماہ پہلے وقت بہتا چلا جا رہا تھا، مگر میں نے اسے کوئی باڑ نہ لگائی تھی اور خود کو وقت کی موجوں کے سپرد کر دیا تھا۔ میرا گاؤں فتح پور اپنے نام کی طرح کامیاب، جہاں لہلہاتے کھیتوں کی ہریالی آنکھوں کو سرور بخشتی تھی، وہاں رہنے والے سبھی مغیر محبتوں کا بیوپار کرتے تھے۔ عیاری، مکاری، نفرت، بے حیائی جیسے کاموں سے بہت دور وہ میرا گاؤں اور اس کے لوگ بھرپور زندگی جی رہے تھے، اپنی مرضی کی سانسیں لے رہے تھے۔ شہر کی مصنوعی آب و ہوا اور وہاں کے کریہ فعل اسے چھو بھی نہ پائے تھے۔ چاہے 2 وقت کی سوکھی روٹی کھا کر سوتے تھے، مگر گاؤں کا کوئی گھر بھوکے پیٹ نہ مرتا تھا۔ جب گاؤں میں میلے سجتے تھے تو میں جھوم جھوم کر ہر ٹھیلے پہ کھڑی ہوتی، جھولے جھولتی اور چوڑیاں خریدتی، تو مجھے یہ سب خوشیاں دنیا کی ہر مہنگی ترین خوشی سے بڑھ کر لگتی تھی۔ وہاں ہر سال لگنے والا میلہ بڑا رنگین ہوتا تھا، جہاں ارد گرد کے گاؤں اور دور پار سے بھی لوگ آتے تھے اور ایک دوسرے سے بڑی محبت اور چاہت سے ملتے تھے۔ ہمارا گھر چونکہ شہر سے کافی دور تھا، جہاں پہنچنے میں 8-7 گھنٹے لگتے ہوں گے اور کتنی ہی بسیں تبدیل کرنی پڑتی تھی، اسی لیے وہاں تک بہت سے لوگوں کی رسائی نہ ہوتی تھی سوائے سالانہ لگنے والے میلے کے۔ اسی لیے ہم سب سکھیاں سارے کام چھوڑ چھاڑ کر میلہ دیکھنے بھاگ جاتی، جہاں کبھی کبھی ہم رات بھی رک جاتی۔ گاؤں کے چودھری نے خاص طور پر عورتوں کے لیے پردے کا انتظام کر رکھا تھا، اسی لیے سبھی عورتیں وہاں خود کو بڑا محفوظ تصور کرتی تھی۔ چودھری اچھا انسان تھا، لیکن اس کا بیٹا اس سے بالکل مختلف، ایک نمبر کا عیاش اور آوارہ۔ دوستوں کے ساتھ مل کر وہ غریب گھروں کی لڑکیوں کو تنگ کرتا تھا، لیکن جب کبھی چودھری کو اس کی خبر ہوتی تو وہ اسے بہت مارتا تھا، جس کا بدلہ وہ بعد میں ہم سب لڑکیوں سے مختلف طریقے سے لیتا تھا۔ لیکن چونکہ چودھری اچھا انسان تھا، اس لیے سب کچھ جانتے ہوئے بھی گاؤں والے اس کی ایسی حرکتوں کو معاف کر دیتے تھے، مگر ہر بار غلطیوں کو معاف کرتے رہنے سے زندگی میں بڑے بڑے حادثات جنم لیتے ہیں۔ پچھلے سال کا میلہ بڑا یادگار میلہ تھا، جس کی دھوم بڑی دور دور تک پھیل گئی تھی، بڑے پیمانے پر خرچہ کیا گیا تھا۔ اسی سال سب سے بڑی سرکس کا بھی انتظام کیا گیا۔ بچہ بچہ خوش تھا اور جشن کا سا سما تھا۔ میں بھی خوش تھی اور سہیلیوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی پھر رہی تھی، کبھی ایک ٹھیلے پر تو کبھی دوسرے پر۔ سال بھر جو پیسے ہم میلے کے لیے جمع کرتی تھی، انہیں خوب مزے کے کھانے کھا کر اور چیزیں خرید کر اڑا دیتی تھی، اور اماں مجھے کہتی رہتی کہ تو سارے پیسے اڑا دیتی ہے، کچھ بچا بھی لیا کر، مگر میں کہاں مانتی تھی اماں کی باتیں۔ اماں کی باتیں تو مجھے کبھی اچھی ہی نہ لگی تھی۔ ہر وقت کی نصیحتیں، ہر وقت کا گیان سن سن کر میرے کان پک جاتے، اور وہ بھی اپنی عادت سے مجبور بس بولتی ہی چلی جاتی تھی، اور میں بھی انہی کی بیٹی تھی، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ پچھلے سال کے میلے میں جب جانے لگی تو اماں حسب معمول اپنی نصیحتوں کا پٹارا کھول کر بیٹھ گئی۔ دیکھ شبو، دھیان سے جانا، سہیلیوں کے ساتھ رہنا، اب تو بچی نہیں رہی، بڑی ہو گئی ہے، سر پر دوپٹہ پورا کھول کر لینا، اور دیکھ کسی لڑکے سے بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ بالا تیرے ساتھ جائے گا اور ساتھ ساتھ ہی رہے گا۔ میری بوڑھی ہوتی ہڈیوں میں اب اتنی ہمت نہیں کہ میں میلوں میں جاتی پھروں، بس 2 دن بعد واپس آ جانا۔ اماں کی سب نصیحتیں تو میں ہضم کر لیتی تھی سوائے بابر عرف بالے کے،
पता नहीं क्यों अम्मा उसे हमेशा मेरे सर पर सवार रखती थी और वो मुझे एक आंख नहीं भाता। मेरा दिल चाहता था कि मैं उसके पैरों में कुछ दे मारूं और ये लूला लंगड़ा होकर सारी जिंदगी के लिए चारपाई पर बैठ जाए। मेरी तरफ यूं घूर कर देखता तो मुझे इससे और भी नफरत होने लगती थी। अम्मा से जब इसका इजहार करती तो वो 2-4 जूते उठाकर मुझे मारने पर तुल जाती, मगर उसे क्या पता था कि बाला इतना मासूम नहीं जितना उसे समझती है। लेकिन मेरी मजबूरी थी, उसे अपने साथ ले जाना ही पड़ा। अभी हम वहां पहुंचे ही थे कि चौधरी का नालायक बेटा हमारा रास्ता रोके खड़ा हो गया, जिस पर बाले को भी गुस्सा आ गया था और उसने मुझे पीछे करते हुए बड़ी बहादुरी से उसे ललकारा। तो कुछ लम्हों के लिए वो मुझे अच्छा लगा कि मेरी हिफाजत करने के लिए उसने अपनी जान की भी परवाह न की। लेकिन कुछ लोग देखने में जैसे लगते हैं असल में वैसे होते नहीं। चौधरी के बेटे ने मेरा रास्ता छोड़ दिया और मैं झूमती झूमती चूड़ियों के ठेले की तरफ पड़ गई। मुझे चूड़ियां बहुत पसंद थी और मेरी कोशिश होती थी कि हर रंग की चूड़ी मेरे पास हो। बाला इधर उधर कुछ और देखने लग गया। जिस चूड़ियों पर मैंने अपना हाथ धरा था उन्हीं पर एक और लड़की ने भी हाथ रख दिया। मैंने बेध्यानी में उसे देखा ही नहीं था कि वो मुझसे पहले ही खरीद चुकी है। ठेले वाले भाई ने कहा कि चलो शब्बो, कोई बात नहीं, ये हमारी मेहमान है, तुम ऐसा करो कोई और चूड़ियां ले लो। जब उसने मेहमान कहा तो मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वो हमारे गांव की लगती न थी, न चाल ढाल, न बाल, न हुलिया, कुछ भी हमारे गांव से मेल न खाता था। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा तो मैं भी मुस्कुरा दी और सलाम के लिए आगे हाथ बढ़ा दिया। उसने भी गर्म जोशी से सलाम लेते हुए अपने हाथ में पकड़ी चूड़ियां मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, ये तुम ले लो, इसमें से मैं कोई और ले लूंगी। तब मुझे शर्मिंदगी सी हुई और मैंने कहा कि नहीं, ये आप ले ले, मैं दूसरी देख लूंगी। फिर हम दोनों हंस दी तो मैंने उससे पूछा कि आप किस गांव से आई हैं? तो वो बड़ी हल्की सी आवाज में बोली कि मैं किसी गांव से नहीं बल्कि शहर से आई हूँ। मैंने पूछा किसके साथ आई हैं आप? तो उसने चौधरी के बेटे अफजल का नाम लिया तो मैं एकदम डर के मारे पीछे हट गई। क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गई? उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, वैसे ही मैं अब चलती हूँ, शाम हो रही है। तो हम औरतों वाले कैंप में चले गए। वो मुझे खुदा हाफिज कहकर अफजल के साथ गप्पे लगाने में मसरूफ हो गई। अफजल चोर नजरों से मुझे देख रहा था, जिसे देखकर मुझे खौफ महसूस होने लगा और मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ रात न रुकूं और घर चली जाऊं। इतनी देर में बाला मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरे साइकिल की हवा किसी बच्चे ने निकाल दी है, अब शाम भी हो गई है, ऐसा करते हैं यही रात गुजार लेते हैं और सुबह सारा मेला घूमकर वापस चले जाएंगे। मुझे ये उसकी कोई साजिश ही लग रही थी, लेकिन मैंने डरते डरते हाँ कह दिया। अंदर ही अंदर से मैं घबरा रही थी क्योंकि मुझे बाले पर भी यकीन न था। रात ज्यादा हुई तो जानवरों की आवाजें मेरे कानों में आने लगी और वो घुसकर मुझे खौफजदा करने लगी। मुझे किसी की कदमों की आहट अपने टेंट की तरफ आती महसूस हुई तो मैं डर के मारे उठकर बैठ गई। बाकी लड़कियां बड़े आराम से सो रही थी। जाने क्यों मुझे ही वहशत महसूस हो रही थी। मैंने देखा कि एक साया मेरे टेंट के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। मैंने हिम्मत की और अपने साथ लेटी अपनी सहेली को उठाकर कहा कि शायद कोई बाहर खड़ा है। उसने आंखें मलते हुए मुझे पीछे कर दिया कि सो जाओ, ऐसे ही तुम्हारा वहम है। मुझे बड़ी सख्त नींद आ रही है। कुछ देर बाद मुझे लगा कि एक सुराग से कोई अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। अब हिम्मत करके मैं उठी और डरते डरते उसी सुराग से बाहर देखा तो मैं हैरान रह गई क्योंकि मेरे सामने वही सुबह वाली लड़की जो अफजल की दोस्त थी वो खड़ी थी। मैंने सुख का सांस लिया और टेंट की गिरह खोलकर उसे कहा कि इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? खैर तो है, क्योंकि वो हमारी मेहमान थी तो मैंने सोचा किसी मुश्किल में ना हो। वो मुस्कुराकर बोली, शुक्र है तुम मिल गई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी और अभी अभी दूसरे टेंट में भी चोरों की तरह झांक कर आ रही हूँ। मैंने पूछा खैर तो है, मुझे क्यों ढूंढ रही हो? उसने कहा आओ यहाँ हम बाहर बैठकर बातें करते हैं ताकि अंदर सोने वाले लोग डिस्टर्ब ना हो। इसकी शख्सियत में कुछ ऐसी कशिश थी कि मैंने उसे इनकार न किया और उसके साथ बैठ गई। तब उसने मुझे बताया कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो और इसलिए मेरा दिल चाहा कि तुमसे मिलकर बातें की जाएं। मैं रात देर तक जागने की आदी हूँ, मगर यहाँ तो सब जल्दी सो गए, इसीलिए बोर होकर तुम्हें ढूंढने निकल खड़ी हुई। तो चलो बताओ क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सोचकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया और कहा कि मेरा नाम सायरा है, सेठ जलाल की इकलौती बेटी सायरा जलाल। तब मैंने भी अपना हाथ खुशी खुशी उसकी तरफ बढ़ा दिया क्योंकि मुझे भी वो अच्छी लगी थी। मैंने उससे पूछा तुम तो शहर में रहती हो और मैं इतनी दूर गांव में, भला मैं तुम्हारी दोस्त कैसे? तब वो मुस्कुरा दी और कहने लगी भाई तुम किस दुनिया में रहते हो? लोग कोसों दूर दूसरे मुल्कों में रहकर भी एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हो सकते हैं और ये दूरियां लम्हों में दूर हो सकती हैं और तुम शहर और गाँव की बात करती हो। मैंने हैरानी से पूछा वो कैसे? तो उसने मुझे पास पकड़े एक मोबाइल को दिखाया और बताया कि इससे जो मोबाइल मेरे पास था इस पर तो सिर्फ बटन से थे जिनसे हम कॉल कर सकते थे, लेकिन दूर कॉल करने पर तो सिग्नल भी टूट जाते थे। तो भला दूसरे मुल्क कैसे बात हो सकती है? जब मैंने उससे ये कहा तो हंसती और कहने लगी चलो फिर कभी तफसील बताऊंगी। बस फिर क्या था,
हम दोनों की दोस्ती हो गई और मैंने उसे पूरा मेला दिखाया, खूब घुमाया फिराया और वापसी पर उसे गांव लाकर अम्मा से भी मिलवाया। अम्मा भी उससे मिलकर बड़ी खुश हुई थी। वो एक दिन हमारे घर पर रुकी भी थी और हम में काफी गहरी दोस्ती हो गई। फिर वो वापस अपने शहर चली गई और कभी कभार मुझे फोन करती थी। हम घंटों बातें करते थे, हंसते रहते, लेकिन अम्मा का चेहरा कभी कभार बड़ा अजीब सा हो जाता, मगर मैं उसे नजरअंदाज कर देती कि अम्मा की तो आदत ही ऐसे है, दूसरों पर शक करती रहती हैं। हमारी दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब वो मुझसे मिलने के लिए हमारे गांव भी आ जाया करती थी और जब भी आती तो मेरे लिए कुछ न कुछ लाती जरूर थी, कभी चूड़ियां, कभी कपड़े, कभी जूते वगैरह, और मैं बहुत खुश हो जाती थी। कभी कभार मुझे भी शक होने लगता कि कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही, क्योंकि मेरा ध्यान चौधरी के बेटे अफजल की तरफ चला जाता था। लेकिन जब मैं सायरा की मोहब्बत देखती तो सारे वहम एक तरफ रखकर उसकी दोस्ती पर नाज करती। तुम कितनी अच्छी हो सायरा, कितनी दूर से मुझसे मिलने आती हो, और जब भी आती हो तो कितने कीमती तोहफे उठा लाती हो। जब इस बार वो आई तो मैं और वो नहर किनारे बैठे बातें कर रहे थे कि उसने मुझसे कहा, चलो आंखें बंद करो, इस मर्तबा मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मुनफरिद तोहफा लाई हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली और कहा कि अब दिखाओ क्या लाई हो। अच्छा, इतनी बेताब क्यों हो, अभी दिखाती हूँ। मैं आंखें बंद किए बैठी थी मगर कोई आहट नहीं आ रही थी। मैं घबरा गई और आंखें खोल दी। देखा तो वहां कोई न था, सायरा थी न कोई और मुझ पर तो वहशत तारी होने लगी। मैंने उसे बहुत आवाजें दी मगर कोई जवाब न मिला। मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मैं मदद के लिए किसी को पुकारने वाली थी कि किसी की हंसी की आवाज आई। मैंने इधर उधर देखा तो कोई दिखाई न दिया। गौर किया तो आवाज दरख्त के पास पड़ी एक सफेद सी चीज की तरफ आ रही थी। मेरे पांव लरजने लगे और मैं डरते डरते आगे बढ़ी तो देखा कि वहां एक छोटा सा टीवी जैसा कुछ था, बिल्कुल मेरे हाथ जितना, और वहां सायरा की तस्वीर आ रही थी जिसमें वो हंस रही थी। वो मुझे कह रही थी, अब भला बताओ मैं कहाँ हूँ? मैंने घबराई हुई आवाज में कहा कि सायरा, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम अभी मेरे पास थी और अभी इस टीवी में कैसे चले गई? वो कहकहे लगाने लगी और मैं तो रोने वाली हो गई। इससे पहले कि मैं वहां से भाग उठती, पीछे से किसी ने मुझे कांधों से पकड़ लिया। वो सायरा थी और मैं दिल पकड़ कर बैठ गई कि आखिर ये क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सायरा, चली जाओ यहाँ से, तुमने तो मुझे डरा दिया। तो वो हाथ जोड़कर माफी मांगने की एक्टिंग करने लगी। अच्छा, माफ कर दो, मजाक किया था तुम्हारे साथ। अच्छा आओ अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैं शहर से क्या खास चीज लाई हूँ। मैंने नहीं लेनी कोई चीज तुमसे। मैं नाराज होकर बोली तो वो खींच कर मुझे दोबारा नहर किनारे ले गई और मेरे हाथ में वही छोटा सा टीवी पकड़ा कर कहती है, ये मोबाइल है। तुम्हारे पास जो मोबाइल है इस पर सिर्फ आवाज आती थी, वो भी टूट फूट कर, और मुझे जब तुम्हारी याद आती थी तो मैं तुम्हें देख नहीं पाती थी। अब इस मोबाइल पर तुम मुझे वीडियो कॉल कर सकोगी और जब चाहोगी आराम से बात कर सकोगी। वो बोलती जा रही थी और मैं खुशी के मारे बोल नहीं पा रही थी। मैंने अपनी गांव की एक दो लड़कियों से ऐसे मोबाइल के बारे में सुना जरूर था मगर देखा पहली बार था। उस दिन हम घंटों नदी किनारे बैठे रहे और वो मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने के तरीके समझाती रही। उसने मुझे व्हाट्सएप का इस्तेमाल बताया और सबसे अहम फेसबुक इस्तेमाल करना सिखाया, जिसके मुतालिक मैंने अपनी एक दोस्त से सुना था और एक मर्तबा अखबार में भी पढ़ा था जो बाला शहर से लाया था। उस दिन से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल कर रह गई। मेरे साथ मेरा मोबाइल और मैं होती, अम्मा की किसी बात पर ध्यान न देती, बाले को मुंह तक न लगाती और बस अपने कमरे में घुसी रहती। एक दिन मैं फेसबुक इस्तेमाल कर रही थी कि किसी लड़के ने मुझे पैगाम भेजा, कैसी हैं आप? मेरा नाम शहजाद है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी क्योंकि आज तक मैंने किसी से इस तरह बात न की थी। आगे से मैंने भी उसे अपना नाम, गांव का नाम बताया तो वो खुश हुआ, कहने लगा मुझे गांव की लड़कियां बहुत पसंद है, बड़ी साफ दिल होती हैं और खूबसूरत तो बला की होती हैं। क्या आप भी इतनी खूबसूरत हैं? मैं ये सुनकर शर्मा गई और कहने लगी कि हाँ, किसी दिन दिखा दूंगी कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। उसने मुझे अपना फोन नंबर दिया और इसी तरह हम रोज घंटों एक दूसरे से बातें करते। कभी कभी मैं महसूस करती कि उसके पीछे से किसी की आवाजें आ रही होती थी। जब मैं पूछती तो कहता कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ लड़के लड़कियां काम करते हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। मैं हैरान होकर पूछती कि क्या लड़कियां भी लड़कों के साथ ऑफिस में काम करती हैं? वो कहता कि हाँ, शहर में तो ये सब बहुत आम है, तुम चाहो तो तुम भी यहाँ आकर अपना कोई काम शुरू कर सकती हो, और वैसे भी तुम्हें शादी के बाद यहीं तो रहना है मेरे साथ। शहजाद की बातों में बड़ी सदाकत थी, सच्चा लबो लहजा और मधुर आवाज मेरे दिल में उतर गई थी। एक दिन उसने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी तो सोचने लगी कि अब अपनी तस्वीर कैसे भेजूं, कहीं अम्मा ना देख ले, कहीं बाले को पता चल गया तो मेरी जान ही निकाल देगा, क्योंकि आजकल अम्मा ने घर में एक ही रट लगाई हुई थी कि बाले के साथ मेरा निकाह पढ़वा देगी। मैं मर जाऊंगी मगर बाले के साथ शादी ना करूंगी। मैं रोज अम्मा को ये कहती और रोज एक जूता मेरी तरफ उछाल देती, मगर मुझे कोई फर्क न पड़ता था क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन शहजाद आएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा। मैंने तस्वीरें खींचकर शहजाद को भेजी तो झट से उसका फोन आ गया। कहने लगा
अरे तुम इतनी खूबसूरत हो, गांव में क्या कर रही हो? तुम्हें तो शहर में रहना चाहिए। बेगम साहिबा बनाकर रखूंगा तुम्हें और पलंग से नीचे पांव भी उतारने न दूंगा। मैं उसकी मोहब्बत भरी बातें सुनकर ख्वाबों की दुनिया में चली जाती और मुझे बाले और अफजल जैसे लोगों से घिन आने लगती। जब सायरा मेरे लिए आती तो मुख्तलिफ कपड़े भी लाती, बिल्कुल वैसे जैसे वो खुद पहनती थी, जिसे देखकर अम्मा को गुस्सा आ जाता और वो कहती कि ऐसे कपड़े शरीफ घरों की लड़कियां नहीं पहनती। तब मुझे बहुत बुरा लगता और मैं अम्मा की एक सुने बगैर नए कपड़े पहनकर तस्वीरें बनाती और शहजाद को भेज देती, जिन्हें देख देख कर वो लुत्फ उठाता और मेरी तारीफों की पुल बांध देता। तारीफ किससे अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब तारीफें बेजा हो जाएं तो उन्हें वहीं रोक देना चाहिए, वरना इंसान मुंह के बल गिरता है। मैं शहर के तौर तरीकों से कहाँ वाकिफ थी। मैं तो वो करती थी जो सायरा करती थी। उसे कॉपी करते करते जाने कब मैं भी सायरा बन गई। अच्छी सोहबत अच्छे लोग पैदा करती है और बुरी सोहबत बुरे लोग को जन्म देती है। सायरा ने अब मुझे सिगरेट पीना भी सिखा दिया था और मैं अम्मा से चोरी छुपे सिगरेट पीने लगी थी। एक दिन अम्मा ने मुझसे पूछा कि घर में से किसी की सिगरेट की बू आती है, तो मैं घबरा गई, मगर अब झूठ बोलने के 1000 रास्ते में सीख चुकी थी। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी बीमारियां मुझे लग गई थी, जहां रोज हजारों लोग घंटों फजूलगोई करते और एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए झूठ के ताने बुनते थे। मैंने भी अम्मा से झट कह दिया, अरे अम्मा तुम्हें तो हर वक्त कोई ना कोई शक घेरे रहता है। तब अम्मा ने कहा कि बाले के घर वाले कल तेरा रिश्ता मांगने आ रहे हैं, कोई ढंग के कपड़े पहनना, अपनी शहरी सहेली जैसी ना बन जाना। मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने अम्मा से कह दिया कि मैं बाले से शादी नहीं करूंगी, मगर अम्मा मुझे 2-4 थप्पड़ मारकर कमरे से बाहर निकल गई। मैं रोने लगी। इतनी देर में शहजाद की कॉल आ गई। मुझे रोता देखकर वजह पूछने लगा तो मैंने सारा हाल सुना दिया। तब वो थोड़ी देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, ऐसा करो कि आज रात बस ही से शहर के लिए निकल पड़ो, मैं तुम्हें अड्डे से ले लूंगा। तुम फिक्र न करो, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई नहीं आएगा। तुम सिर्फ मेरी बीवी बनोगी, वरना मैं भी अपनी जान ले लूंगा। हाय शहजाद, ऐसा ना कह, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शहजाद ने मुझे इतना हौसला दिया कि माँ का दिया हुआ हौसला और मोहब्बत पल भर में भुलाकर रात घुप अंधेरे में अपने ख्वाब ढूंढने निकल पड़ी। अड्डे पर एक खूबरू नौजवान मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे पहचान लिया और मैंने उसे देखकर नजरें झुका ली। उसने मेरा बैग पकड़ा और मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर खुद अगली सीट पर बैठ गया और मुझसे बातें करने लगा। ड्राइवर अजीब सी नजरों से मुझे देख रहा था, जैसे देखकर मुझे खुद से शर्मिंदगी आने लगी। हाँ तो बताओ, फिर सफर कैसा रहा? कोई मुश्किल तो नहीं हुई? अभी हम होटल जाएंगे क्योंकि मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं और मैं फौरन तुम्हें माम पापा से नहीं मिलवा सकता। शहजाद की बातें सुनकर मैं घबरा रही थी, मगर मुझे उसकी मोहब्बत और नीयत पर पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया। कुछ देर बाद हम एक आलीशान होटल के बाहर खड़े थे। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी देश की शहजादी हूँ, जिसे महलों में रहना ही चाहिए। गांव की गंदी मंदी गलियां और बाले का सोचकर मुझे घिन आ गई थी। मैंने एक नजर ऊपर उठाकर देखा तो इतनी ऊंची बिल्डिंग देखकर मेरी आंखें चुंधिया गई और मैं शहजाद का हाथ पकड़कर होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगी। दुनिया और होश से बेगाना में जिंदगी को पाने जा रही थी या खोने, मुझे मालूम न था। शहजाद ने मुझे निहायत खुले खूबसूरत कमरे में ले जाकर बिठा दिया और कुछ कपड़े देकर कहा कि ये पहन लो, कुछ देर बाद हम मामा पापा से मिलने के लिए निकलेंगे। मैं खुशी खुशी कपड़े बदलने अपने बाथरूम चली गई। जब बाहर निकली तो शहजाद को दिखाने की गरज से उसे आवाज दी। मेरी एक आवाज पर 4 लोग मेरे सामने आ खड़े हुए थे और शहजाद उन सब के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं तो चकरा कर रह गई। एक शख्स ने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया था और दूसरा मेरी कनपटी पर पिस्तौल रखकर मेरे कान में सरगोशी करने लगा कि अगर होटल से निकलते वक्त तुमने कोई चूंच रहा की तो यहीं पर गला काट दूंगा। मेरी नजरें शहजाद की तरफ थी। मैंने उसे चीख कर कहा कि तुम इतने धोखेबाज भी हो। वो हंस दिया और कहने लगा कि तुम जैसी लड़कियां जो शहरों में अपने ख्वाब बेचने आती हैं, उनके साथ ऐसा सलूक ही किया जाता है। जो माँ बाप की इज्जत न संभाल सकी वो किसी की गैरत क्या बनेगी। ये कहकर उसने मेरे बालों से मुझे खींचा और दूसरे लोगों को हुक्म दिया कि ले जाओ उसे। हम एक बार फिर बड़ी सी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मुझे अपने गांव को खाती हुई निगाहें महसूस हुई, जैसे वो मुझ पर हंस रही हो और कह रही हो कि आ गई तुम। इस शहर की रोशनी तुम्हें खींच लाई, लेकिन इस रोशनी की तपिश तुम्हें मार कर दम लेगी। तुम देखना, तुम अपना चेहरा भी पहचान ना पाओगी। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और अम्मा को हाथ याद करते हुए ज़ारो कतार रोने लगी तो मेरे साथ बैठे शख्स ने मेरा गला दबोच लिया और कहने लगा, आवाज नीचे रखो, तमाशा ना करो वरना यही मार दूंगा। फिर हम एक आलीशान कोठी पर पहुंच गए जिसके गेट पर निहायत खूबसूरत कपड़ों में मलबूस एक लड़की खड़ी थी, जिसके करीब जाते जाते मुझे लगा कि मैं उससे पहचानती हूँ। गौर किया तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे मुंह से निकला, सायरा तुम? मैं उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी तो उसने मुझे धक्का देकर पीछे फेंक दिया और जोर जोर से हंसने लगी। मैं साथ खड़ी एक बड़ी उम्र की औरत के कदमों में जा गिरी।
जिसने मुझे बालों से पकड़कर खींचा और सामने से आते हुए एक 60 साला बूढ़े के आगे फेंक दिया। ये मेरा पहला सौदा था। इसके बाद मैं बिकती रही। मेरे ख्वाबों के एवज मुझे ये सजा मिली थी कि मैं रोज जीऊं और रोज मरूं। मेरी अम्मा की चीखें मेरे दिल के खानों को रोज फाड़ती थी। जब मैं सोचती कि जिस रात में घर से भागी होंगी तो उन्होंने अपना दम घोट लिया होगा या चीखें मारी होंगी, फिर मैं अपने कानों पर हाथ रख लेती। 6 माह तक सभी अपना सांप जैसा जहर मेरे मुंह में उगलते रहे और एक दिन मेरे जिस्म पर इतने सिगरेट सुलगाए गए कि मैं बेहोश हो गई। इन मुर्दा वजूदों ने समझा कि शायद मैं मर गई हूं, इसीलिए मुझे कूड़े के ढेर पर फेंक गए। किसी राह चलते ने मुझे सरकारी अस्पताल दाखिल करवा दिया। जाने कितने दिनों से मैं यहाँ थी। अम्मा और बाला कैसे जाने अस्पताल पहुंच गए। शायद वो माँ थी, बदनसीब बेटी की खुशबू खींच लाई होगी। आज मैं सरकारी अस्पताल के वार्ड नंबर 2 में जेर इलाज हूँ। मेरे हाथों में सुइयां ही सुइयां चुभी हैं। मुझे लग रहा है कोई मेरे गले पर चाकू रखे मेरी शहरक काट रहा है। मैं सामने देखती हूँ तो अम्मा बैठी है। शायद उसी ने कहा होगा कि ऐसी बेटी से तो अच्छा है मर जाए, लेकिन अम्मा तो मेरे हाथों पर जमा खून अपनी चादर से साफ कर रही थी। तब मैं चीख उठी, अम्मा वो देख, मेरी गर्दन पर उसने चाकू रखा है। न जाने किस तरफ इशारा कर रही थी। अम्मा ने रोते हुए गले से लगा लिया और कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे पास हो, कोई नहीं है वहां, तुम्हारा वहम है। काश तुम मेरी बातों को सुन लेती तो आज इस हालत में मुझे ना मिलती। मैं मुर्दा वजूद लिए अम्मा की गोद में पड़ी हूँ। जाने कब मौत का परवाना आ जाए और मैं हमेशा के लिए आंखें बंद कर लूं। मैं सोच में डूबी हूँ कि मुझे सायरा जैसी सहेली ने मारा या गलत सोहबत ने, या फिर शहजाद की बेबाकी और मेरी बेलगाम होती बेहयाई ने, या फिर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वाले उन सभी लोगों ने जो मुझ जैसे शिकार के मुंतजिर सारा दिन वहीं बैठे रहते हैं, या फिर शायद मैंने खुद को खुद ही मारा। जो बेटियां माँ की नसीहतों को बोझ और उसकी मोहब्बत पर गैरों की मोहब्बत को फौकियत दे बैठती हैं, उनके नसीब में यूं ही मरना लिखा होता है।